नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जामे निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए जारी करने का ऐलान, अकबर ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। ERC रिपोर्ट की वसूली के बाद बरखी शरहों में किसी कदर इजाफे का इम्कान, वजीर आला ने दिया इशारा। कौंसिल के ग्रेजुएट हल्के के लिए 22 मार्च को होने वाली रायदही के लिए इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। और राजेंद्र नगर में आबरसानी के दफ्तर में ऑन ड्यूटी ओहदेदारों की मौज मस्ती, मीडिया के नुमाइंदों को देखते ही फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि जामे निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। असम्बली में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे को कबूल करते हुए वज़ीर आला ने ये ऐलान किया। अकबर ओवैसी ने मजलिस के बाज़ अहम मुतालबात का जिक्र न किए जाने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। कायद मजलिस मोकन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बजट मुबाहिस के जवाब में मजलिस के बाज़ अहम मुतालबात का जिक्र न किए जाने पर हुकूमत को दोबारा तवज्जो दिलाई। अकबर ओवैसी ने कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद के लिए ग्रीन चैनल के जरिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया गया था। इस सिलसिले में वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने अपने जवाब में कोई वजाहत नहीं की है। उन्होंने कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद के अमले के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। Madam, I had raised some important issues regarding the finances of the state and also about minorities. And in the reply given by the Honorable Finance Minister, most of the points of concern which were raised by myself were not replied. So I would like to seek a clarification in this. First, Madam, I have requested for release of funds to Minority Welfare Department through Green Channel. And the request and the reason for this is, always in the Green Channel, only Shadi Mubarak scheme is there. The rest of the schemes are not covered under Green Channel. I do understand and realize that it will take time for the state government to make a minority sub-plan. Till the time the sub-plan comes into force, till then a Green Channel can be provided to minority welfare. It would be good and the funds could be utilized. And I have also asked about what are the measures being taken for augmentation of staff for Minority Welfare Department at Secretariat, the Commissariat and the various organizations, Work Board, Finance Corporation, District Minority Welfare Offices, etc. Because there isn't a single permanent employee in Minority Welfare Department. It is zero, man. And if 1,000 crores needs to be spent, then we require that staff to implement the schemes. The other demand which we have not responded to the Finance Minister Saab includes, I have requested for an optional language as Urdu in all schools, in private and in government schools. Madam, we had a 3-language formula. At the time of merger of Hyderabad state into Indian Union that time, and also at the merger of Hyderabad into Andhra Pradesh, that time also we had the Sahel Asani formula, 3-language formula in which Urdu, a student can choose Urdu as a second language. That has been taken away and it has not been getting implemented. So we should give, because already laws are existing, GOs are existing, but it has to need to be implemented. So I had requested for that. And also we had made a representation to the Honorable Chief Minister about a representation was given by Jamia Nizamiya, which is celebrating its 130 years, for construction of auditorium. They have made a request to give it from grant and aids, and nothing has been said by Honorable Finance Minister in this. And I have also mentioned about Dargah Hussain Shah Wali Waqf, madam,
कि already whatever is going on the Waqf land at Hussain Shah Wali, whether Microsoft, ISB, EMR or Wipro, any activity which are going on, we do not want to disturb them. But whatever is the vacant land, that should be handed over to Waqf Board and an amount should be fixed to Telangana Waqf Board. I say this because right now Waqf Board has 30 crores and that 30 crores are the money of Andhra Pradesh of a dargah by name Ishaq Madni. After the bifurcation of Waqf Board, that entire amount will go to Andhra Pradesh and Telangana Waqf Board will have no money then. So that time we need. So if this amount, whatever amount is there, can be recovered from the Lanco Hills or from Microsoft or from ISB or anywhere, should be recovered and handed over to Telangana Waqf Board for the Waqf Board to function, which is very important. There is one Waqf land, madam, which is there very much in Hyderabad city, in old city, that is Fakir Mullah Dargah. Revenue court, I fought the case, we have won the case, and the court has given orders to change the records from the government land to Waqf land. And if that land is 220 acres, on the 220 acres, we can give 50 acres for burial. So we don't have to give any government land also, it's a Waqf land. So these are small issues which has not been addressed, and I have also requested for one more holiday to be given, because we have welcomed the government's move of declaring a holiday for Eid and also for Christmas. At the same time, I have requested and demanded that the government may declare a holiday for Shivratri also. On the same lines as for Eid and other holidays, because for Shivratri, my Hindu friends and Hindu brothers, they fast in the daytime and they are awake in the night, and the next day they have to go for the duties and for their jobs. So if kindly a holiday could be declared for Shivratri, it will give a very good message. And on the lines in which Yadgiri Gutta temple is being getting developed, I had made a request and a demand to the government to please make a ramp for Hazrat Baba Sharfuddin Sahab Pahadi Dargah. That has also not been addressed. And in the erstwhile Andhra Pradesh, on my party representation and my representation, the Andhra Pradesh government has agreed to construct a new Hajj house building and a training center at Baba Sharfuddin Sahab Dargah, and 3 crores was sanctioned also. If the government could react positive on this and a new Hajj house could be constructed there, which will have some other skill developmental activities, it will be very good. And I also had requested for, there's one only single orphanage in Hyderabad city by the name Anisul Gurba. The erstwhile Andhra Pradesh government chief minister then has approved and said that the adjacent land, which is of PWD and R&B department, 1,000 or 2,000 square yards of land would be given for the development and for construction of an orphanage. It is a single orphanage, Muslim orphanage in the entire state of Telangana. And we do not need any funds for the construction, because in Ramzan, the zakat money, more than 2 crores every year, people contribute and give to that orphanage. Only if a land could be given, then the construction can be taken up over there. And we had made a request and demand that Quli Qutub Shah, Old City development, we wanted 100 crores for the development because it has become sick. It is not functioning. Kindly just allot Quli Qutub Shah, and from Quli Qutub Shah, whatever amount is provided, we will take only for construction of colleges like Falaknuma Junior College, one at Golconda College, and one at Malakpet Chanchalgura College, Junior and Degree College. Nice and lovely buildings can come, because this is a very serious issue and this has not been addressed. I hope that the government would react on that. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी की तरफ से किए गए मुतालबात को कबूल करते हुए ये ऐलान किया कि तारीखी दरसगाह जामे निज़ामिया में ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। उर्दू में तकरीर करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने जो मुतालबे किए हैं, हुकूमत उस पर संजीदा इक़दामात करेगी। उन्होंने कहा कि दरगाह पहाड़ी शरीफ पर रैंप बनवाने के लिए भी रकम मंजूर की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद में जल्द 2 ता 300 तक़र्रुरात किए जाएंगे। अभी तक माइनॉरिटी फंड्स के लिए कोई सेपरेट ग्रीन चैनल नहीं है। ग्रीन चैनल में अगर डालेंगे
तो पैसे सीधे आ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूं। आज ही हम इंस्ट्रक्शन इश्यू करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो भी बजट होगा उसको ग्रीन चैनल में डाल के ही सेपरेट करके ही हम काम करेंगे। आई एश्योर द ऑनरेबल मेंबर। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के स्टाफ के बारे में आपने काफ़ी बार कह चुके हैं। 100% यू आर राइट। वो इंस्टीट्यूशंस अंडर स्टाफ नहीं, बिल्कुल स्टाफ है ही नहीं, ऐसा बात जगह है, तो उसमें भर्ती करना चाहिए। इसमें आप 500 लोगों को भर्ती करने के लिए डिमांड करें, लेकिन आई एश्योर यू आई विल डिस्कस विद द डिपार्टमेंट वॉट एवर इज देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट 200, 300 वॉट एवर इट इज, government will issue orders positively to recruit the staff also. And one more thing which I have assured the council, madam, I am also bringing it to the notice of the honorable member, that उर्दू के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, वो चाहे प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, खवातीन के है, लड़कों का है या कॉलेज है, सारे चीज़ों में 2 to 2,500 Urdu teacher posts and lecturer posts we are going to recruit very shortly. We are going to issue a notification. क्रीमी लेयर के लिए मुसलमानों के लिए भी 6 लाख का सीलिंग अगर जैसा बीसीस के लिए है उसको इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा है, मुसलमानों का फायदा होगा बोल के आप बोले। बिल्कुल इसमें करने में हमको गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं है। उसके लिए भी हम जल्द से जल्द ऑर्डर्स इशू करवाएंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है, जो भी है, मैं आपको एक ही बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, ऑन पार विथ SC ST अब उनके लिए जो रूल्स है उसमें बिल्कुल दिया जाएगा। एक बार आपने सही उठाया कि प्री मैट्रिक में SC ST को नहीं है, इसलिए कि उनके लिए रेजिडेंशियल हॉस्टल्स है, इनके लिए नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ दे रहे हैं, हम कुछ जोड़ने पर इन बच्चों को भी मिल सकता है। 10 लाख बच्चों का, गरीब बच्चों का अगर फायदा होता है तो गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं होगी। 100% वी विल इशू प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। कुछ जोड़ना पड़े तो रियासती सरकार से जोड़ के उनको बिल्कुल स्कॉलरशिप दिलाएंगे, इसमें हमको एतराज नहीं है। शादी मुबारक के बारे में आपने जो कहा बिल्कुल मैं सहमत हूं। मुझे भी थोड़ी उतना जितना हैप्पी रहना चाहिए उतना हैप्पी नहीं हूं। स्कीम में इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा दिक्कतें आ रही है। कुछ सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, कुछ ये पूछ रहे हैं, वो सता रहे लोगों को। ये अच्छी बात नहीं है। हम आज ही आदेश देते हैं कि अगर वोटर लिस्ट में है नाम 18 साल का, अब उससे बढ़ के कोई चीज़ है, जब वोट डलवा ले रहे तो 18 साल का सर्टिफिकेट मिल ही गया उनको। तो वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है वो काफ़ी है, उससे मालूम हो जाता है। उसको भी एक क्राइटेरिया में आज ही गाइडलाइंस हम इशू करते हैं, इस बात को भी कह देते हैं ताकि स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने में हमको आसानी हो जाए। और उर्दू ऑप्शनल लैंग्वेज का सहूलत हमारे हैदराबाद रियासत में था, लेकिन आंध्र प्रदेश बनने के बाद वो हट गया। और उर्दू मुहिबाने कई हैं तेलंगाना में, ये किसी मजहब का या किसी कौम का जुबा नहीं है, हमारा तेलंगाना का ये जुबा है। तो इसीलिए इसका कदर करना हर शहरी का फर्ज बनता है, तेलंगाना का शहरी का। उर्दू ऑप्शनल लैंग्वेज का भी होदा हम देते हैं। बिल्कुल जो पढ़ना चाहे उर्दू उसको पढ़ने दीजिए, इसको किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो नहीं पढ़ना चाहिए उनका मंशा है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए सहूलत होना जरूरी है। उर्दू ऑप्शनल लैंग्वेज का भी सहूलत हम करवा देते हैं। अकबर साहब ने जामे निजामिया का जिक्र किया, वो बड़ा फ़ख्रमंद इंस्टीट्यूट है हमारा। हैदराबाद का पहला यूनिवर्सिटी 140 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ है। साबिका हमारे हैदराबाद रियासत का चीफ मिनिस्टर साहब बूरगुल रामकृष्ण राव साहब उसी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट थे। हमारे बागारेड्डी साहब हमारे बुजुर्ग हमारे मेदक जिले से थे, वो भी मंत्री थे, वो भी वहीं के स्टूडेंट थे जामे निजामिया के। कई ऐसे बड़े बुजुर्ग लोगों ने वहाँ पढ़ाई हासिल की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पहले यही हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी था, लेकिन मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उसका रौनक उतर गया। अब उसको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, हर लिहाज से उसका कदर करना है। तेलंगाना रियासत जामे निजामिया का अहमियत क्या है जानता है, इसीलिए वहाँ एक ऑडिटोरियम बनाने के लिए मेरे पास दरखास्त आया था। बलाला साहब ने मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो मैंने उसको RNB से एग्जामिन भी करवाया। आज ही हम जीओ पास कर दिए मैडम। 9 करोड़ 60 लाख से फर्स्ट क्लास वहाँ पे ऑडिटोरियम में बनने जा रहा है। वो मैं बड़ा खुशी से उसका ऐलान भी करता हूँ, और जीओ भी मैं जल्द से अकबर साहब को भिजा दूंगा। वक्फ बोर्ड लैंड्स के बारे में
వక్ఫ్ బోర్డ్ ల్యాండ్స్ ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష దాని గురించి కూడా వారు చెప్పినారు. काफी जमीन छीना गया, हजारों एकड़ छीना गया. बियाबानी दरगाह जो जमीन है 1200 एकड़ के ऊपर है, वो भी छीन रहे थे, लेकिन मैं खुद जाके वहां जंग करके लड़ाई करके उसको रोक दिए. अल्लाह के फजल से बच गया. अभी हमारे मुसलमान नौजवान सिलिकॉन वैली में भी है, गल्फ में भी है, दुनिया के कई कोने में भी है. हमारे हैदराबाद के मुस्लिम नौजवान काफी पहुंचे हुए आईटी एक्सपर्ट्स भी है. वो लोग आ सकते हैं. आने के लिए मुझे कुछ टेलीफोन्स भी आए, टेलीग्राम्स भी आए, कुछ सुझाव भी आए मेरे पास कि आप अगर आईटी हार्डवेयर पार्क, आईटी पार्क्स अगर बनाते हैं, हम भी मुस्लिम नौजवान आके वहां इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है. लोग तैयार बिल्कुल बैठे हैं. इसीलिए इन जमीनों पे अब तक जो नाजायज काबिज हुए उसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन जो हासिल है, जो मौजूदा प्रॉपर्टी है, उसको बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे, उसको महफूज रखेंगे और आईटी पार्क्स वहां बनाएंगे. जैसा कि लैंड ऑयल्स के ताल्लुक से आपने कहा, हुसैनी शाह वाली दरगाह का जो भी वहां पे बिल्डिंग बना है, ये सेंट्रल वक्फ एक्ट है मैडम, हमारा स्टेट का नहीं है. ये बहुत ही रिजिड एक्ट है, इसको कोई बदल भी नहीं सकता. बिल्डिंग बना भी तो कितने भी साल उसमें कोई बिल्डिंग बना काबिज भी हो, उनका प्रॉपर्टी वो नहीं बन सकता, वो वक्फ का प्रॉपर्टी बना रहता है. दैट इज व्हाट द सेंट्रल एक्ट सेज. सो इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट अगर वो लोग बना दिए, 10 मंजिल बने, 12 मंजिल बने, 14 मंजिल बने, वो लैंको हिल्स हो या कोई और बिल्डिंग हो, उन लोगों को अभी हमारे को कंपेंसेशन देना पड़ेगा. वो पैसा, वो रकम जो है हम वक्फ बोर्ड में डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि हमारा कम्युनिटी का फायदा होता है. जिन चीजों पे बिल्डिंग्स ऑलरेडी बने हैं, उसका अगर डिमॉलिश डिजायरेबल नहीं है, वो पैसा बिल्कुल वसूल करेंगे, वो वक्फ बोर्ड में जमा करा देंगे. और जो खाली जमीन है हमारे लोगों के लिए काम आएगा. जैसा कि अभी अकबर साहब ने बताया, कब्रिस्तान के लिए हमारे पास जगह नहीं है. हजारों एकड़ जमीन तो छीना गया, लेकिन आखिरी में कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है. ये बड़ी शर्म की बात है. इसीलिए हम लोग जो खाली जमीन है, जल्द से जल्द मैं एक मीटिंग बुलाने वाला हूं हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स और इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ. उसमें हम फैसला ले लेंगे. मैं आपको उससे भी पॉजिटिव लाइन में गवर्नमेंट का रवैया रहेगा. और दूसरा, पहाड़ी शरीफ का आपने जो बात छेड़ा है, बिल्कुल सही बात है. हमारा जाना माना दरगाह है तेलंगाना का. जैसा कि हमारे जहांगीर पीर है, जानपाट दरगाह है, निजामाबाद का बड़ा पहाड़ है, ऐसे कईयों दरगाह हैं जहां हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं. उसमें वहां जात बात का, मजहब का भी बात नहीं आता है. जो लोग जानते हैं, तेलंगाना में नाम भी होता है. जाना रेड्डी साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर है, हमारे बुजुर्ग है, उनका नाम जानपाट दरगाह से ही है. और हमारे जिले में एक हमारा, हाँ बिल्कुल ये बात सच है. तो लोग मन्नत मांगते हैं तो बेटा पैदा होता है तो बिल्कुल वही नाम रख लेते हैं. नवाज रेड्डी है, हमारे वारंगल के सरपंच फोरम के प्रेसिडेंट है, याकूब रेड्डी साहब है. हमारे मेदक डिस्ट्रिक्ट में नवाज रेड्डी साहब है, हाँ निरंजन रेड्डी साहब है. ऐसे कई लोग हैं जो दरगाहों के नाम पे अपने बच्चों को नाम देते हैं, जो मुबारकबाद समझ के देते हैं, वो अच्छा भी है. तो इसलिए पहाड़ी शरीफ दरगाह को भी एक वो जो बनाने के लिए आप कह रहे थे, बिल्कुल मैं सहमत हूं. ऊपर जाने के लिए रैंप बनाने के लिए, जो कि अभी 1000 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है. वहां बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते हैं, बूढ़े लोग जाते हैं, तो वो लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है. वहां डेफिनेटली रैंप बनाने के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से हम रकम मंजूर करेंगे. और उसके साथ ही साथ पहाड़ी शरीफ दरगाह का जो फुट हिल एरिया है, वहां पे मुझे इतला मिला कि 70 से लेकर 100 एकड़ तक अच्छा जमीन है. हज सेंटर एक इंटरनेशनल लेवल पे हमको मैं बनाना चाहता हूं. वहां पे हज चलता है, साल में 2 महीना चलता है. 1 महीना तैयारियां होते हैं, दूसरे 1 महीने के लिए जाके आते हैं हमारे हाजी. तो इसीलिए अभी नामपल्ली में जो बनाया वो छोटा हो गया, कंजेस्टेड भी हो गया, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं कुछ ऑफिशियल कारोबार के लिए. और पहाड़ी शरीफ के जो फुटिल एरिया में हमारा औकाफी जायदाद जमीन है, उस जमीन में हमारे मुस्लिम खवातीन के लिए और मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों के लिए ये जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स सेंटर कम हज सेंटर, दोनों को मिला के हम लोग बनाते हैं. 10 महीने वहां पे वोकेशन सेंटर काम करेगी. नौजवान बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे. और 2 महीने एक्सक्लूसिवली जब भी हज आ जाता है, हज के टाइम पे, हज के महीने में, वो बड़ा मुबारक महीना माना जाता है दुनिया भर में, वो 2 महीने जो है सो हाजियों के लिए हम रखेंगे. वहां हर चीज का सहूलत करेंगे. और इंटरनेशनल लेवल पे इसको मैं बनाना चाह रहा हूं. जल्द से जल्द जो मीटिंग बुलाऊंगा, मैं आपको भी दावत दूंगा. आप भी आइए, आपका राय दीजिए, बिल्कुल बना लेंगे उसको. कुली कुतुब वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का
आपने जिक्र किया, सही आपने कहा, पहले कुछ सरकार पैसे देते थे लेकिन हाल में बंद किया, उसके लिए पैसे रकम आप मांग रहे थे, जरूर उसके लिए रकम देंगे, क्योंकि वो खास तौर पर ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट में काम करता है कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसीलिए आपसे बात करेंगे, डिटेल्स बात करेंगे, उन ऑफिसर को भी बुलाएंगे, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी साहब को भी बुला लेते हैं, और क्या रकम उनको चाहिए, क्या प्रपोजल पेंडिंग है उनके पास। जैसा आपने कुछ कॉलेजों का जिक्र किया, उन चीजों के लिए मैं सहमत हूं, सरकार सहमत है, 100% उसको रकम मुहैया किया जाएगा। और दूसरा, नामपल्ली का जो ऑर्फनेज है ना, आप जो बोल रहे थे ऑर्फनेज है, वो बिल्कुल उसके लिए सरकार पैसे देने का, सरकार मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि ज़कात जो निकालते हैं रमजान के महीने में लोग, कई करोड़ों लोग मतलब निकालते हैं, कई करोड़ों रुपए उसका आमदनी आता है, लोग चलाने के लिए भी है। वो कमेटी जरा ठीक से बनाएंगे उसका, उसमें हमारे एक आध पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी रखेंगे, जिम्मेदार लोगों को, वहाँ उस एरिया के एमपी साहब को भी वहाँ रखते हैं, उसमें रखे तो थोड़ा उसका काम दाम अच्छा भी चलेगा। उसके बगल में एक आरएनबी ऑफिस है, एक ही ऑर्फनेज है पूरे रियासत में मुसलमानों के लिए, तो उस ऑर्फनेज का मेंटेन करना, उसको एक्सपेंड करना भी सरकार का फर्ज बनता है। जिसके माँ बाप नहीं है, जो ऑर्फन्स है, उनके लिए तो तवज्जो होना चाहिए, सरकार की तरफ से देखना चाहिए। 4 एकड़ मतलब करीब करीब 1 एकड़ पे वहां पे एक सरकारी दफ्तर है आरएनबी का, पीडब्ल्यूडी का। आरएनबी का तो बहुत बड़ा इमारत एर्रा मंजिल पे बन गया है, कई पैसों से, काफी खर्चा से बन गया है। वो ऑफिस वहां शिफ्ट करेगा, और जो भी जमीन वहां सरकारी जमीन है मिलेगा, वो सारा जमीन हमारे ऑर्फनेज को दिया जाएगा, और उस पर अच्छा हम इंतजाम कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास अच्छा क्लास 1 ऑर्फनेज हम लोग चला सकते हैं, ताकि हमारे मुसलमान यतीम बच्चों का कुछ खिदमत हो सके, उनका तरक्की भी हो सके। उनके लिए उसमें छोटा सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी ला सकते हैं। जो लड़की लोग लेते हैं उनको अलग से रख सकते हैं, लड़के रहते हैं तो उनको अलग रख सकते हैं। अच्छी सहूलत, मैं भी एक बार जाके विजिट करूंगा इंशाल्लाह, उसको भी अच्छी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और शिवरात्रि के बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छी बात है, हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के हक के लिए लड़े, और हिंदू भाई मुसलमानों के तरक्की के लिए लड़े, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। जबरदस्त एक गुलदस्ता बन के हिंदुस्तान के सामने हम पेश आएंगे, सारी दुनिया के सामने पेश आएंगे, और हमारा गंगा जमुना तहजीब सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। किसी भी कीमत पर किसी भी चीज में मुसलमानों के जो मसाइल है, उनके जो हक़ें हैं, उनके जायदाद जमीन है, नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हम तेलंगाना को एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, देश में दुनिया में एक जबरदस्त मिसाल के शिकल पर दिखना चाहते हैं, एक सेक्युलर रियासत बनाना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे बुजुर्गों ने भी कह चुके हैं, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। यही रवैया हमारा टीआरएस सरकार का होगा। 100% हम हर किसी को हमारे साथ लेके चलेंगे, और एक अच्छे सेक्युलर स्टेट बनके देश के सामने, दुनिया के सामने पेश आएंगे। मैं इतना कहते हुए वज़ीर आला की तरफ से मजलिस के मुतालबात को कबूल करने पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि यह उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मजलिस ने मुसलमानों की तरफ से जो मुतालबात पेश किए थे, इसे वज़ीर आला ने कबूल किया है। उन्होंने कहा कि वही नहीं बल्कि सारी रियासत के मुसलमान वज़ीर आला के ममनून हैं, और इन मुतालबात को कबूल करने पर के चंद्रशेखर राव का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, और तेलंगाना की तारीख में भी वज़ीर आला का नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझता हूँ कि ये मेरी अखलाकी फ़र्ज़ व ज़िम्मेदारी बनती है कि इतने मुतालबात को जो मैंने अपनी पार्टी की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से रखा चीफ मिनिस्टर साहब के सामने, उन्होंने इस पर ना सिर्फ तयखुन दिया बल्कि इसको कबूल किया, कई मुतालबात को मंजूर किया। तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ मैं बल्कि सारे रियासत के मुसलमान चंद्रशेखर राव साहब का के ममनून है, मशकूर हैं कि आपने इतना ऐलानात किए और हमारे तकरीबन सारे मुतालबात को कबूल किया, और आपके इस तारीख साज ऐलानात और तयखुनात को मुसलमान ज़रूर याद रखेंगे, और रहती तारीख में ज़रूर आपका भी नाम एक सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा, सुनहरी तेलंगाना में, कि आपने मुसलमानों के इतने मसाइल को हल किया, न सिर्फ सुना। तो इसके लिए मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहब। वज़ीर आला ने इशारा दिया है कि ERC की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद बरक़ी शरहों में कुछ हद तक इजाफा हो सकता है।
असेंबली में मंगल को आम बजट पर मुबाहिस के दौरान वज़ीर आला ने दावा किया कि आइंदा मालियाती साल रियासत की आमदनी 96,000 करोड़ रुपए होगी। असेंबली में खानगी कॉलेजेस को बंद किए जाने और फीस बाज अदायगी के मसले पर अपोजिशन ने हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया। रियासती असेंबली में मंगल के दिन आम बजट पर मुबाहिस के बाद वज़ीर आला ने जवाब देते हुए कहा कि आइंदा मालियाती साल में रियासत की आमदनी 96,000 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा कमर्शियल टैक्स और जेर इल्तिवा बकाया जात 4,000 करोड़ रुपए हासिल करने का निशाना रखा गया है। वज़ीर आला ने बताया कि हैदराबाद के अतराफ 10,000 एकड़ मंजूरा अराजियात में बड़े पैमाने पर बेकायदियां हुई हैं। उन्होंने बताया कि जिन अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है उन्हें फ़रोख्त किया जाएगा। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि बरक़ी शरहों में इजाफे से मुताल्लिक़ ERC रिपोर्ट के बाद कुछ हद तक इजाफा हो सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि जो बजट पेश किया गया है उसको खर्च करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अंदाजे के मुताबिक फंड्स आएंगे तो खर्च करेंगे, वरना असेंबली में हिसाब पेश किया जाएगा। हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि साल 2014-15 के बजट में हुकूमत ने कितना खर्च किया है इसकी तफसीलात जारिया सेशन में तसर्रुफ़ के दौरान पेश की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया जाएगा, आंगनवाड़ी को बारीक चावल फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृष्णापट्टनम से चंद्रबाबू नायडू ने बरक़ी न देकर हम पर एहसान किया है, इससे तेलंगाना रियासत 2,500 करोड़ रुपए की बचत कर सकी है। उन्होंने कहा कि खम्मम के लोअर सिलर से तेलंगाना के लिए बरक़ी के हुसूल के मकसद से मरकज़ पर दबाव डाला जाएगा, इसके लिए कुल जमाती वक्त भी ले जाएंगे। इससे पहले तेलंगाना असेंबली में मंगल को वक्फ़ा सवालात के दौरान खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद किए जाने और फीस बाज अदायगी के सवाल पर गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। फीस बाज अदायगी के सिलसिले में हुकूमत के मौक़िफ़ और वज़ीर तालीम के जवाब से अदम मुतमईन कांग्रेस और बीजेपी के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। क़ायद मजलिस मुक़न्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत फीस बाज अदायगी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हुकूमत खुद इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम करते हुए मुफ्त तालीम फराहम कर सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया गया, जो कि अदालत की तौहीन है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को पोशीदा रखा जा रहा है। अकबर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को खानगी कॉलेजेस की हौसला अफजाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए तो कई तलबा बिलखुसूस अक़लियती तलबा का नुकसान होगा। अकबर ओवैसी ने कहा कि अक़लियती और गैर अक़लियती इंजीनियरिंग कॉलेजेस के इंतज़ामिया के अरकान का इजलास तलब किया जाए और मसले की एकसोई की जाए ताकि तलबा और कॉलेजेस इंतज़ामिया का नुकसान न हो। I request, I'm telling you once again, sir, through you I'm requesting the government, two ministers sahab, call for a meeting, sort out this issue, sit across the table, whoever is eligible, who can be permitted and given a chance, kindly give them one chance. If again they don't do it, you shut it down, we will never come for the relief of those colleges. And minority students are getting affected, sir. There are a lot of details, sir. I only request once again, sir, please call for a meeting and try to sort out the issue and give some relief, sir. इससे पहले अपोजिशन कांग्रेस के जीवन रेड्डी, बीजेपी के लक्ष्मण ने कहा कि फीस बाज अदायगी के बोझ को कम करने के लिए हुकूमत कॉलेजेस की इजाजत को मनसूख कर रही है। बाद में स्पीकर ने अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया और तमाम सवालात को डीम टू आंसर करते हुए कार्रवाई को वक्फे के लिए मुलतवी किया। बाद में वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने आम बजट पर हुकूमत की तरफ से जवाब देते हुए अपोजिशन जमातों के एतराज़ पर कहा कि नवंबर के आखिर में गुज़िश्ता बजट पेश किया गया था। दिसंबर से साल 2015-16 के बजट की तैयारी शुरू की गई थी, लिहाजा हुकूमत के पास आदाद शुमार नहीं थे, इसलिए नज़रसानी बजट को जू का तू रखा गया है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि साल 2014-15 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट किसी और ने नहीं लिखा और उनके लिखे हुए बजट को उन्होंने नहीं पढ़ा। इस बजट को ओहदेदारों और सियासी कायदीन ने तैयार नहीं किया है, बल्कि सब ने मिलकर बजट को पेश किया है।
वजीर फाइनेंस ने कहा कि रकम देने के लिए अहकामात या ऐलानात की जरूरत नहीं, बल्कि इंसानी हमदर्दी होनी चाहिए। इससे पहले वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र की तरफ से बजट मुबाहिस पर जवाब देने के आगाज के साथ ही अपोजिशन अरकान ने वक्फे सिफर के तहत कार्रवाई चलाने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान माइक देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर मदाखलत करते हुए कहा कि हर बात को मसला बनाना तहजीब नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हर बात पर वावेला मचा रही है, पोडियम के पास जाकर एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि अपोजिशन की मर्जी के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। कौंसिल के ग्रेजुएट हल्के के तहत 22 मार्च को होने वाली रायदही के लिए इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वरंगल, खम्मम, नलगुंडे की ग्रेजुएट नशिस्तों के लिए टीआरएस इंतखाबी मैदान में आगे नजर आ रही है। इस बार ये इंतखाबात सियासी तौर पर मुनक्किद हो रहे हैं। हालिया अवामी तज्जियों से पता चलता है कि टीआरएस के उम्मीदवार देवी प्रसाद और पी राजेश्वर रेड्डी की जीत यकीनी है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजमीन के फिटमेंट में इजाफे और कैंटोनमेंट के इंतखाबात में कामयाबी के पेश नज़र टीआरएस की जीत यकीनी दिखाई दे रही है। देवी प्रसाद, जो तेलंगाना मुलाजमीन की एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं, मुलाजमीन तबके की उन्हें एक तरफा तायीद हासिल है। बीजेपी के उम्मीदवारों को तेलुगु देशम की तायीद हासिल है, लेकिन तेलंगाना में तेलुगु देशम का मौक़िफ़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तेलुगु देशम तायीद से बीजेपी को कोई फ़ायदा होता नजर नहीं आता। तेलुगु देशम के कई कायदीन पहले ही टीआरएस में शामिल हो चुके हैं और टीआरएस कायदीन का भी ये कहना है कि अगर बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट आया तो वो चंद्रबाबू नायडू को वोट देने के बराबर है। टीआरएस सुनहरे तेलंगाना के नारे के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है। महकमे आबरसानी के दफ्तर राजेंद्र नगर में शराब और कबाब की दावत उड़ाने वाले ओहदेदार मीडिया को देखकर भाग निकले। मज़कूरा दफ्तर में इस दावत का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया था, लेकिन कौन जानता था कि दावत से लुत्फ़अंदोज़ होने से पहले ही बरसर खिदमत ओहदेदारों को कारों और बसों के जरिए फरार होना पड़ेगा। बाद सरकारी दफातर तो ऐसे भी होते हैं जहां ओहदेदार ही नहीं बल्कि ड्यूटी अंजाम देने वाले दूसरे मुलाजमीन भी नशे की हालत में होते हैं। स्पेशल ऑफिसर और कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सुमेश कुमार ने मंगल के दिन गुड्डी मलकापुर फूल मार्केट और तरकारी मार्केट का दौरा किया। उन्होंने फूल फरोश और तरकारी फरोश अफराद से मुलाकात की। कमिश्नर ने बताया कि इन दोनों मार्केट्स में पार्किंग का इंतजाम दुरुस्त नहीं है, ताजरीन के लिए पानी और बैतुल खला का नज़्म नहीं है, कचरा भी जगह जगह डाला जा रहा है जिसकी वजह से सफाई नहीं है। इन तमाम मसाइल की यकसुई करते हुए इन दोनों मार्केट्स को वर्ल्ड क्लास बनाने का मंसूबा है। कमिश्नर ने बताया कि जो गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर संगारेड्डी राहुल बोज्झा ने बताया कि एसएससी इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि एसएससी के सालाना इम्तिहानात 25 मार्च से 11 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे से 12:15 बजे दोपहर होंगे। उन्होंने बताया कि ज़िले मेदक से 45,977 तलबा इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे, जिसमें बाकायदा 42,176 तलबा होंगे, जबकि 3,800 खानगी तलबा भी इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। अंबरपेट गोल नाके के पास वाक़े नाले में कचरा और मट्टी मुसलसल डाली जा रही है, जिससे पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। पानी एक जगह जमा होने और कचरा व मट्टी जमा होने से इस इलाके में ताफुन फैल रहा है। बलदिया की जानिब से भी इस नाले की सफाई के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं, जबकि बारिश के मौसम में भी ये सूरत हाल रही तो फिर अंबरपेट के इस इलाके में मसाइल पेश आ सकते हैं, क्योंकि शहर के दूसरे इलाकों से पानी बहकर इसी नाले के जरिए मूसा नदी में जा मिलता है।
मलकाजगिरी के इलाके वानीनगर में चिट्ठियों का कारोबार करने वाले खातून रकम मशगूल करने वालों को लाखों रुपयों का झांसा देकर फरार हो गई। मलकाजगिरी पुलिस ने मीडिया को बताया कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल कोटेश्वर राव और उसकी अहलिया श्रीलता गुज़िश्ता 10 सालों से ये कारोबार चला रहे थे। ये दोनों जनवरी से ऐसे अफराद को रकम अदा नहीं कर पा रहे थे जिनके नाम की चिट्ठी उठ गई है। मंगल के दिन श्रीलता अचानक गायब हो गई, जबकि उसके शौहर ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। मुतासरा अफराद ने पुलिस से मुतालबा किया है कि कोटेश्वर राव को गिरफ्तार किया जाए तो श्रीलता का पता चल सकता है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। यूनिक हाई स्कूल ईदी बाजार में 39वां सालाना जलसे का इनेकाद अमल में आया। स्कूल के प्रेस नोट के मुताबिक प्रिंसिपल सारा रफत ने स्कूल की रिपोर्ट पेश की, जिसमें SSC के तलबा के बेहतरीन नताइज और रियासती सतह पर इंस्पायर अवार्ड हासिल करने वालों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इफ्तिताही तकरीब में स्कूल के तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जामे निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए जारी करने का ऐलान, अकबर ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। ERC रिपोर्ट की वसूली के बाद बरखी शरहों में किसी कदर इजाफे का इम्कान, वजीर आला ने दिया इशारा। कौंसिल के ग्रेजुएट हल्के के लिए 22 मार्च को होने वाली रायदही के लिए इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। और राजेंद्र नगर में आबरसानी के दफ्तर में ऑन ड्यूटी ओहदेदारों की मौज मस्ती, मीडिया के नुमाइंदों को देखते ही फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।